Hello and welcome to Brainwaves UPSC. I am Vaibhav Kulsresh. This is आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन और ये इस सीरीज का चौथा क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हैजार्ड. Give examples including the salient features of major disasters caused by earthquakes in different parts of India during the last 3 decades. Answer in 150 words. भूकंप संबंधी खतरों के प्रति भारत की सुभेद्यता के बारे में चर्चा कीजिए. पिछले 3 दशकों के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के कारण जो प्रमुख आपदाएं हुई हैं उनकी मुख्य विशेषताओं के सहित उदाहरण दीजिए. ठीक है. So in this part, in this question, first we will write about earthquake in introduction part. यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई क्या होता है भूकंप, क्या है earthquake. Then come to main body part और main body में main answer देंगे. Means vulnerability of India to earthquake. Vulnerability of India to earthquake. और इसमें हम लोग चाहे तो हम earthquake zone भी प्रोवाइड कर सकते हैं. Then recent examples or you can say case studies of last 3 decades उसको हमें यहाँ पर बताना है. Then in conclusion part we will sum up the answer or provide summary. So in introduction, India's vulnerability to earthquake-related hazards stems from its geological setting, situated at the confluence of several tectonic plates, including the Indian plate, Eurasian plate, and the Burmese plate, means Myanmar plate. This tectonic activity makes India one of the most earthquake-prone region in the world. And इसको अब हम लिंक कर देंगे मेन बॉडी के साथ. Here is an in-depth look at India's earthquake vulnerability with some examples of past 3 decades. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं. Now come to the main body vulnerability factors बताएंगे कि क्यों vulnerability ज्यादा है. First, tectonic setting. India lies at the boundary of the Indian and Eurasian plates. Collision of these plates lead to significant seismic activity, particularly in the Himalayan region and the northeastern states. That is why we are vulnerable. Seismic zones. India is divided into 4 seismic zones, 2, 3, 4, 5. Zone 5 being the most seismically active. Himalayan belt, part of the northeastern state, Gujarat, Andaman, Nicobar fall into zone 4 and 5. Then third, urbanization and infrastructure. Rapid urbanization, particularly in cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Chennai, increases the risk due to the dense population and inadequate infrastructure to withstand earthquakes. तो एक कारण ये भी है. Then building practices. Traditionally, building practices and a lack of stringent enforcement of building codes contribute to the vulnerability, especially in rural and semi-urban areas. ठीक है, तो भूगर्भीय स्थिति, भूकंपीय क्षेत्र, शहरीकरण, बुनियादी ढांचा, निर्माण प्रथाएं जिसमें हम जो प्रॉपर तरीका होना चाहिए, भूकंप रोधी तरीकों को हम नहीं पालन कर रहे हैं. फिर आते हैं हम कुछ उदाहरण पे लास्ट 3 डिकेड्स में. सबसे पहले उत्तरकाशी का भूकंप 1991 में आया था. मैग्नीट्यूड था 6.8. लोकेशन है उत्तरकाशी, उत्तराखंड. This earthquake resulted in over 760 deaths and extensive damage to infrastructure including houses, schools, roads, mountainous terrain, complicated rescue and relief operation. तो उत्तरकाशी भूकंप आया था, उसमें कुछ लोग मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, पहाड़ी इलाका होने के कारण राहत और बचाव कार्य में कठिनाई आई. दूसरा है लातूर भूकंप 1993 का 6.2 रिक्टर का आया है और लातूर और उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट ये है महाराष्ट्र में. इंपैक्ट से लोग कितने प्रभावित हुए? 9,748 लोगों की मृत्यु हुई, डाइड, एंड 30,000 वर इंजर्ड. The earthquake caused significant damage to housing, especially traditional stone and mud structure,
leading to a major focus on earthquake resistant construction in subsequent rebuilding efforts। ठीक है, तो यहाँ पर इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, पत्थर और मिट्टी के पारंपरिक जो घर थे वो विशेषतः यहाँ पर टूटे थे और उसके कारण ज्यादा नुकसान हुआ। फिर तीसरा आता है जबलपुर अर्थक्वेक, 6 रिक्टर का था, जबलपुर एमपी में है, एंड द इम्पैक्ट अर्थक्वेक रिजल्टेड इन अराउंड 39 डेथ। देखिए आंकड़े कोई जरूरी नहीं है, हाँ आप ये बता सकते हो भाई जान और माल की क्षति हुई, बस इतना सा भी बता देंगे तो भी काम चलेगा। बस थोड़ा सा टीरेन बता दीजिए कि कहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, कहाँ पर अगर लातूर में तबाही मची है, जान और माल की क्षति हुई है, तो उसके पीछे कारण क्या था कि वहां ट्रेडिशनल पत्थर और कीचड़ से मिट्टी से बने हुए घर थे। जबलपुर में क्या हुआ कि यहाँ पर बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा था। रेज्ड अवेयरनेस अबाउट द सीज्मिक रिस्क, हमने वहां पर भूकंप रोधी प्रिकॉशंस को नहीं फॉलो किया था ड्यूरिंग बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है, तो जबलपुर में ये चीज आ जाती है। फिर आता है भुज, भुज 2001 में आया 7.7 रिक्टर का, भुज गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी डेथ हुई है, एक्सटेंसिव जान और माल की क्षति हर जगह हो रही है। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ये तो है ही। अर्थक्वेक लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बिल्डिंग कोड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। भुज से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि 7.7 रिक्टर से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना जरूरी है, और उसके लिए बिल्डिंग्स के लिए भी कुछ कोड बनाना है जरूरी है। तो वहां से हमने जो लर्निंग्स ली हैं उसके बारे में बता दिया, एक लाइन। फिर आता है सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक 2004 9.1 to 9.3, जिसके कारण सुनामी आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सुनामी का जिक्र कर दीजिए। फिर सिक्किम अर्थक्वेक इन 2011 6.9 रिक्टर का, सिक्किम नेपाल बॉर्डर, जिसमें वहां पर भी क्या हुआ, जान माल की क्षति, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी दोनों हो रही है। लेकिन वहां पर क्या दिक्कत हुई कि माउंटेनस रीजन था, तो लोगों को बचाना थोड़ा सा रिस्की हो गया। ठीक, सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ लास्ट 3 डिकेड्स। नाउ सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेजर अर्थक्वेक डिजास्टर्स, ये भी हम वहां पर बता सकते हैं कि प्रमुख भूकंप आपदाओं की मुख्य विशेषता क्या रही है, कि जितने भी एग्जाम्पल हैं उनसे हमने क्या सीखा कि हाई कैजुअलिटी, कई सारी मृत्यु हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, रूरल वर्सेस अर्बन इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में इम्पैक्ट पड़ा है। पोस्ट डिजास्टर rehabilitation, major earthquakes lead to significant rehabilitation, reconstruction efforts with a focus on building earthquake resistant structure and policy preparedness. Disaster prompt changes in policies, building codes and disaster management practices, but implementation and enforcement remain challenges. Policy, नीतियों और तैयारियों में बदलाव लाया गया, लेकिन उसके अभी तक कार्यान्वयन और प्रवर्तन हमारे लिए चुनौती बनी रही है। तो जो भूकंप आपदाओं में चीजें कॉमन हैं उनको हमने एक जगह पॉइंट आउट कर दिया। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है, क्योंकि 150 वर्ड है, वर्ड लिमिट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने डिटेल में आपको इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि अगर ये 250 में आ जाए तो आप उसको खींच सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो। नाउ कम टू द कंक्लूजन पार्ट। इंडियाज हाई वल्नरेबिलिटी टू अर्थक्वेक hazards necessitates continuous efforts in improving preparedness, response, and resilience. This includes enforcing building codes, educating the public, and enhancing disaster management infrastructure to mitigate the impact of future earthquakes. So this is the conclusion part. Hence, this question is the answered now. So if you like our video, please like, share and subscribe, and please also provide your precious feedback कि आपको हमारे जो आंसर राइटिंग सीरीज है कैसी लग रही है, कितना समझ में आ रहा है, ऐसे क्या क्या और प्रयास आप लोग चाहते हैं जो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आऊं। ठीक है, ये ऐसे रिप्लाई आप अगर करेंगे तो मुझे भी आपसे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, तो काम करने में भी मजा आएगा। थैंक यू।